training to various investigation agencies and has achieved a huge experience at an early age. Sir will be enlightening the session on legal framework for trustworthy artificial intelligence and blockchain technology application. I take this opportunity to welcome our esteemed guest, Mr. Mahir Gupta. Thank you, sir. May I request Director Sir, Professor Dr. Vikas Nath to welcome our guest with a memento and a sapling. Before we start the session, I would actually share a personal touch with you all that I have interned with Sir regarding, and he has various experience and various case studies that you will enjoy. He's working on very controversial cases with the government, so he will tell you how the investigation works with the help of AI. Thank you so much. So, due to some technical reasons, I am not able to share my presentation on the screen. So I will be just following up on my laptop, and I will give it to Utkarsha ma'am, and she will share the presentation for your references. Okay. So I'll start with the topic. So today's topic is very going for a criminal law practice or a civil law practice, but still this topic will be very closely embedded into your professional life. Okay. And I'll give you the real reasons why it will be very important for you, and I'll tell you, whenever I go to a law college or even I have been to judicial academies, I always ask, how many of you want to become a cyber lawyer? How many of you want to become a cyber lawyer? Anyone sitting here? Only one. So guys, this is a misconception. Nowadays, you have to be a cyber lawyer, okay? This is not a choice anymore. If you want to pursue the profession of law, you need to understand the cyber dynamics of this whole like civilization right now. So if you will see, पहले क्या होता था? पहले ना पुलिस वाले लाठी डंडे से मारते थे, ठीक है? उसके बाद बंदूकें आई, उसके बाद और टेक्निकल एडवांस चीज आ गई, आजकल ड्रोन गन्स आ रही हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हर चीज बदल रही है। और अगर आप लोग अपने स्किल सेट को नहीं बदलोगे ना टाइम के साथ, यू विल बी समवेयर जहाँ पे कि आप ट्रेडिशनल चीजें कर रहे हो, कोई और स्मार्ट आदमी आकर के वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर रहा है जो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ लेगा, ठीक है? दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. द टॉपिक इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन. So before I begin, I dig deeper into the topic. I'll just give you a very interesting law at Delhi High Court, okay? And I have founded one company. It's called Courtsnat AI. It's a cyber incident response engine. I'll come back to what is a cyber incident, okay? Cyber crime, cyber incident होता क्या है? Then I have founded a platform called Hackershala, ठीक है? Hackershala एक platform है जिसपे कि hackers की training कराई जाती है, ethical hackers बनाए जाते हैं, ठीक है? So we train them. Then I am being like empaneled by the Government of India, Ministry of Home Affairs. मैं 17+ राज्यों की पुलिस को डायरेक्ट साइबर लीगल कंसल्टेशन देता हूँ. तो उसमें कोई भी नई ट्रेनिंग होगी, नया टॉपिक आएगा, अभी आप लोगों ने सुना होगा साइबर कमांडोज का एक कोर्स लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर्स. दैट इज डायरेक्टली बीइंग एम्पैनल्ड बाय मी. मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में 71 RR के बैच से सारे एजेंसीज को ट्रेनिंग देता हूँ फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? Then मेरा एक इंटरनेशनल वेंचर भी है. I won't say it's a venture, but the like with FBI and Homeland Security. सबको FBI and Homeland Security बारे में पता है? So I am the only exclusive cyber crime research partner of India with FBI and Homeland Security. मैं कुछ केस स्टडीज शेयर करूँगा जिसको आप इंटरनेट पे जाके जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो ग्लोबल क्या कहें उसको, मतलब ग्लोबल प्रेसिडेंट्स है एक तरीके से, ठीक है? आप लोग लीगल मैगजीन्स के अंदर मैं यूज करूँ वर्ड्स. Then I have researched and developed and I have published 20+ AI/ML cybersecurity models. मैंने उसके papers करे हुए हैं. I have 4 patents in my company जो cyber security AI/ML models के ऊपर ही हैं. Got it? So this is a very brief background. अब while working with law enforcement agencies, while working with FBI, while working with Homeland Security, I have encountered, I have faced a
लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग केसेस जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो जस्ट बीच में अपना हाथ उठाना, ठीक है। आई विल स्टॉप एंड आई विल एड्रेस योर डाउट। कुछ भी किसी भी तरीके का सवाल आए, बगल वाले को नहीं पता, वो केसेस जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरे को पता है या सरकार को पता है। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो तो मेरे से बात करना, आपस में इधर-उधर बात मत करना, ठीक है। तो किसी को मतलब ये पता है कि आज मतलब जो ये टॉक है, व्हाई दिस टॉक मैटर्स, मतलब जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा होगा लीगल फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लगे होंगे इस पूरी टाइटल के अंदर ही। तो कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे जो आप लोगों को लगे कि यार हमको ये टॉक अटेंड करनी चाहिए? एनी इंटरेस्टिंग वर्ड? एआई, एआई कितने लोगों को लगा इंटरेस्टिंग वर्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अटेंडेंस हो गई है ना यहाँ बैठने की? अटेंडेंस हो गई है, कुछ अटेंडेंस है, चलो ठीक है। एवरीवन हैज देयर ओन मोटिव्स। सो मैं शुरू करने से पहले एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी आईआईटी से ही लॉ करा हुआ है, आईपी यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव नेवर बीन टू माय बिकॉज 2017 में मेरे को हरियाणा पुलिस ने इंक्यूबेट कर लिया था अपने पास। तो मेरे को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिलीविंग दिला दी थी, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी से। आई डोंट हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस वहाँ, मेरे लिए कंपल्सन नहीं थी, ठीक है। ऐसा होता है, कॉलेजेस गिव यू परमिशन, ठीक है। किसी ने वो मूवी देखी होगी ना, वो जिसमें शाहरुख खान था, उसका वो जाकर के मिलवा देता था, ऐसा होता है रियल में भी, दिस हैपेंस। सो आई हैव नेवर बीन टू अ कॉलेज, आई डोंट नो कि मतलब कैसे 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, क्या होता है, बट आई अंडरस्टैंड। तो आज जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन। क्या सब लोग चैट जीपीटी को जानते हैं? यहाँ पे सबने यूज करा होगा, एवरीवन हैज यूज्ड चैट जीपीटी। क्लॉड कितने लोग जानते हैं? पार्डन? क्लॉड, क्लॉड, CLAUDE, इसको लिख लो अपने पास। अगर आज तक आप लोगों ने क्लॉड यूज नहीं करा है, जस्ट राइट इट डाउन, CLAUDE, क्लॉड, ठीक है। अच्छा, CLAUDE, क्लॉड। अच्छा, कोई यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर भी है क्या? क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है कोई? You are pursuing BBA LLB. Which year? Final year. So how much profit have you made? Loss चल रहा है। तो वो कोई खरीदा था क्या? एलन मुझको फॉलो करते हो तुम? चलो ठीक है, कोई नहीं। तो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सबने सुना होगा कभी ना कभी, तो ठीक है। देयर हैव बीन मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स जिन्होंने क्रिप्टो बनाई है, मतलब अपनी भी बनाई है लोगों ने। और एक टाइम ऐसा था जब मैं STF के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, स्पेशल सेल के साथ एक काम कर रहे थे हम लोग दिल्ली के अंदर। तो आप लोगों को याद होगा इंडिया में ना जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो बहुत क्रिप्टोज इंट्रोड्यूस हुए थे। तो आई हैव बीन टू प्लेसेस जहां पे मैंने देखा कि ना लक्ष्मी कॉइन नाम का कॉइन आया हुआ है, उसको लोग क्रिप्टो समझ के उसमें पैसे डाल रहे हैं। हम लोग 12 खंबा रोड सब लोग जानते होंगे, जो दिल्ली में घूमते हैं। 12 खंबा रोड इज नियर CP, ठीक है। वहां पे एक ललित होटल्स करके होटल है, देन ED का ऑफिस है। उस ऑफिस के नियर बाय एक आदमी ने एक ऑफिस खोला, बहुत मतलब नॉर्मल ऑफिस, जस्ट सामने ऐसे मल्टीपल डेस्क लगा दी, और फोन में पावर बैंक कनेक्ट करके उसने बोला मैं क्रिप्टो माइनिंग करता हूँ। दिस इज द टाइम व्हेन डीमोनेटाइजेशन वाज देयर। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, लोग अपना कैश दिखाने लगा थे, जो ग्रे मनी था, ब्लैक मनी था, वो सब इधर उधर शफल हो रहा था। तो उसने बोला आप मेरे इस कॉइन का आज 1 रुपए का दाम है। उसने एक एप्लीकेशन बनाई, इतना तो सब लोग समझते होंगे, मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूँ। उसने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई, उसने अपने आप ही प्राइस अपडेट करना चालू कर दिया। तो मंडे को उसने 1 रुपए कर दिया, ट्यूसडे को उसने 2 रुपए कर दिया, 3 रुपए कर दिया। तो जिसने 1 रुपए में 50 लाख रुपए दिए, उसके अगले दिन 1 करोड़ रुपए बन गए। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को उसके बन गए 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्रॉफिट होने लगा। उस कॉइन का नाम था ATS कॉइन, ठीक है। नाउ ATS कॉइन पे हमें पता लगता है कि कोई ऑफिसर था, उसने अपना कुछ पैसा सेटल कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, और जैसे उसने 5 करोड़ रुपए दिए, उसके अगले दिन से ATS कॉइन की एप्लीकेशन गायब हो गई। देन वी रिसर्च, हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई, एक ऐसा ही देयर आर स्पेशल टीम जो भी कोर्ट ऑर्डर कर देता है, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा लीगल प्रैक्टिस में भी कोर्ट ऑर्डर्स, ये स्पेशल टीम बना लो डिपार्टमेंट के अंदर, और इसी चीज पे काम करेंगे। हमने क्रिप्टो नेक्सस बस्ट करा इंडिया के अंदर। एक नाम है, अपने पास नोट भी कर सकते हो, देयर वाज अ गाय कॉल्ड अमित भारद्वाज। एवर हर्ड अबाउट इट?
किसी ने सुना है अमित भारद्वाज का नाम? तो अमित भारद्वाज एक बंदा था जिसने इसी तरीके की क्रिप्टो बनाई थी और जो इस पूरे नेक्सस को चलाता था। उसने लक्ष्मी पॉइंट बना दिया, गणेश पॉइंट बना दिया, हनुमान पॉइंट बना दिया और लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया और वो सारा पैसा सेटल हो गया। उसके बाद वो एप्लीकेशन बंद हो गई। एंड देन ऐसी मल्टीपल कंपनीज बनी, लेटेस्ट बीइंग अ कंपनी कॉल्ड ओमेगा प्रो, जिसका कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान था। तो आप लोग जब इंस्टाग्राम पे जाते हो आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट्स बने होते हैं काफी ज्यादा, आपके पास रिक्वेस्ट भी आती होंगी, मैसेजेस आते होंगे, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट्स उन्हीं एप्लीकेशन के जो लोग हैं वो आपका डेटा जो है वो यूज करते हैं, कहीं कहीं से आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपको मैसेज करते हैं और आप इन्हीं स्कैम्स के अंदर जाकर फंस जाते हो। ये आज भी चलता है, बट हम लोगों ने बस्ट करा है भी, यू नो, हम लोगों ने कितना कैश रिकवर करा होगा, तो ये एक्स अमाउंट दिमाग में हो 8,000 करोड़ नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं था। कितना? 100 करोड़। हम लोगों ने 725 करोड़ रुपीस एक पर्टिकुलर लोकेशन से बरामद करे, ठीक है। और 725 करोड़ रुपए कैश के अंदर बहुत सारे होते हैं, गिनने के लिए नोटों की मशीन बुलानी पड़ती है। वर्चुअल मनी एक अलग था, ओके। तो दिस इज द लैंडस्केप ऑफ क्रिप्टो। मैं तुम्हें अभी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। जब ब्लॉकचेन किसी के भी सामने रेफरेंस आता है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि बिटकॉइन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू एआई, जो आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, जो आप लोगों को मैंने भी एक एप्लीकेशन का नाम बताया क्लाउड। इवन अगर आप अपना व्हाट्सएप खोलोगे ना, अपने फोन पे भी व्हाट्सएप खोल के देखोगे, मेटा ने भी अपना एआई निकाल दिया है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको लामा बोलते हैं, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इस वक्त ना एआई का काफी रैपिड ग्रोथ हुआ है। अगर अब आप लोग देखोगे गाड़ी में भी एआई आ गई है, घरों के अप्लायंसेस में भी एआई आ गई है, हर जगह एआई दिख रहा है। तो ये रैपिड ग्रोथ एक रीजन है कि जो आप लोगों को एज अ लॉयर समझना पड़ेगा कि कल को एआई ने कुछ बदमाशी कर दी। आपको कोई क्लाइंट आपके पास आता है, रैंडम बंदा कहता है आप लॉयर हो ना, मेरे को एक कंपनी की मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था या मेटा का मैं व्हाट्सएप चलाता था, उसकी एआई ने मुझे गाली दी है, तो आप क्या करोगे? नहीं, मान ट्रस्ट, यस, बट आईटी एक्ट तो इंडिया ने सॉल्व नहीं कर रहा प्रॉब्लम। हाउ वुड इट सॉल्व द एआई प्रॉब्लम? यस, आवाज नहीं आ रही है। क्या कर देंगे? माइक को सॉल्व कर। आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गए सर? Sir, Digital Data Protection Act. Your name, Gaurav. your course and your year. BBA LLB 9. Okay, ठीक है, प्लीज। नहीं बताओ, मेरे को समझ नहीं आया। Digital Personal Data Protection. Okay, ठीक है, perfect. So, everyone has heard about DPDP Act. DPDP Act के बारे में सबने सुना है? नहीं सुना, ठीक है। क्या सबको पता है एक बार डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था? ठीक है, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। हम लोगों को एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट के अंदर, ठीक है, एंड देयर वर एलिगेशंस फ्रॉम बोथ साइड, हस्बैंड एंड वाइफ की साइड से, दोनों की साइड से एलिगेशंस थे कि इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह है, कुछ है। वो डेटाबेस ऑनलाइन लीक हो गया था, ठीक है। तो उसके अंदर मैं अगर आपका कोई फोन नंबर है, जैसे आपने कभी डोमिनोज से ऑर्डर करा होगा, तो डोमिनोज का अगर आपका फोन नंबर है, मैं उस डेटाबेस में रन करूंगा ना, मेरे को आपके सारे ऑर्डर हिस्ट्री सब कुछ पता लग जाएगा। व्हाट वी डिड, मतलब हम वी वर रिप्रेजेंटिंग द फीमेल साइड, ठीक है। तो हम लोगों ने जब उसके हस्बैंड का नंबर सर्च करा उस डेटाबेस के अंदर, हमें 4 लोकेशंस मिली जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड थी, होटल्स थे, रिजॉर्ट्स थे, जहां पे उसने डोमिनोज से ऑर्डर करा हुआ था। एंड थ्रू दैट वी गॉट द लीड। हम उन होटल से पहुंच गए, वहां से डेटा निकलवा दिया। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ योर पर्सनल डेटा बीइंग लीक्ड ऑनलाइन। समझ में आ रहा है इंपैक्ट? मतलब तुम सोच रहे हो कि शायद हमारा जो फोन नंबर है कहीं पे भी वो चाहे उस पर जाते बोलते 50 रुपए का ऑफ मिलेगा, फोन नंबर डाल दो, तो वो उसके बाद ना कहीं सेल होता है, ठीक है। डेटा इज द न्यू वर्ल्ड राइट नाउ, so that is why this topic is really important. एक चीज और है, एआई और ब्लॉकचेन जो है ना, वो ना इस वक्त डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब ये एक तरीके से क्रांति ला रहे हैं, है ना। दिस इज लाइक अ रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। अगर आप लोग देखोगे एआई जो आपको फ्री में मिल रही है, तो पहले ना हम लोग जब पढ़ते थे तो मेडिटेशन वगैरह ऐसी वेबसाइट होती थी जिसके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे बहुत महंगे, कुछ भी उससे आंसर पूछने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आज आप चैट जीपीटी पे जाओ, अपना कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो आपको हाथ के हाथ आंसर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। So this is what? This is like
sorry, I am not able to, I'm missing the word. So this is like a digital democracy being upheld by these AI blockchain technology. अच्छा blockchain का क्या concept है? Blockchain is digital हवाला, ठीक है? This is digital हवाला. हवाला समझते हो तुम लोग? मनी लॉन्ड्रिंग सुना है कभी? मनी लॉन्ड्रिंग सुना है ना? फैमा के बारे में भी सुना होगा कभी ना कभी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारे इंडिया के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी को अपने दिमाग में सेट रखना कि दिस इज डिजिटल हवाला ग्लोबली राइट नाउ, ठीक है, करेंसी मैनेज के अंदर। तो इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। आप लोगों को पता है कि जो भी ₹1 हिंदुस्तान में मिंट होता है उसके अगेंस्ट उसके एक्सचेंज में कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है सरकार की तरफ से, ऐसा पता है? गोल्ड रखा जाता है, यूएस में क्रूड ऑयल रखा जाता है डॉलर बनाने के लिए, अदरवाइज तो हर कंट्री अपने कितने पैसे बना लेगी। आज इंडिया के अंदर कितने भी नोट छापो और चले जाओ बात करके यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दो, ग्लोबल एक्सचेंज रेट होता है वो किसी कमोडिटी से मैप होता है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट पूरा का पूरा रेगुलेट करती है। क्या क्रिप्टो में ऐसा कुछ रखा जाता है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब क्रिप्टो जब बनती होगी, एक बिटकॉइन बनता होगा तो क्या यूज होता होगा उसके अगेंस्ट में? आज आप लोग गूगल पे डालो कि एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है तो 80 लाख रुपए दिखेगी, कभी 50 लाख रुपए दिखेगी। वो कौन डिसाइड कर रहा है? कुछ आइडिया है? कौन डिसाइड कर रहा है? प्लीज। सर क्रिप्टो की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है क्रिप्टो का प्राइस, स्पेशली बिटकॉइन। नहीं, बट डिमांड सप्लाई जैसे सर क्योंकि जो बिटकॉइन है उसके सिर्फ लिमिटेड नंबर्स ऑफ बिटकॉइंस ही हैं, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो उसी पे डिपेंड करती है। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पता होगी जो एक्सचेंज बोर्ड या कुछ ऐसा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना, जो रेगुलेट करता हो, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आई विल कम बैक टू इट लेटर। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड कह लो। आप एक तरीके से अपने घर में अपना पैसा बना रहे हो। आपको एक बात बता दो, ये लॉ है, सरकार के पास जो पावर है ना, वो पावर ये है कि सरकार जब चाहेगी जिसकी जमीन पैसा कुछ भी ले सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती तो शायद सरकार इतना एनफोर्समेंट नहीं कर पाती, ठीक है, गॉट इट। और आप कह रहे हो कि मैं अपना पैसा खुद बना दूंगा, तो क्या कभी लगता है सरकार बनाने देगी? कभी लगता है कि अगर मैं आज बोलूँ कि मैं अपना खुद का सिक्का बनाऊंगा, यार मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा, और वो सिक्का मेरा मार्केट में चलना चाहिए, तो चलाने देगी सरकार? तो दिस इज टोटली अनरेगुलेटेड अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट, ठीक है। देन अगर मैं आज बोलता हूँ कि यार क्रिप्टो में ट्रेड कर लो, या मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, मैं बिटकॉइन से तुम्हारे पैसे बनाने वाला हूँ, कितने लोग इंटरेस्टेड है पैसे डालने में? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? आप लोगों के बीच में ट्रेडर है ऑलरेडी। 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कर सकते हो 500 रुपए से, नहीं 500 रुपए से करने हैं, ठीक है। तो मैं अभी अपना यूपीआई नंबर दिखाऊंगा, बताऊंगा उसको 500 रुपए जो भेजेगा उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपसे, गॉट इट। नाउ ये समझना है कि यस बोलो यार 110% है, 500 रुपए का रिस्क तो लेना चाहिए ना। 500 रुपए का रिस्क इज नॉट चीप, तुम्हारी ये लर्निंग फीस है, ठीक है, तुम लोगों को सीखने को मिल रहा है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से, दैट इज ऑल, गॉट इट। चलो हम आगे चलते थोड़ा सा। अभी तक किसी को ये पता है कि इंटरनेशनल फेमस लॉज जैसे जीपीडीपी एक्ट मैंने सुना कि किसी ने यहाँ पे मेंशन करा है, और कौन सा कोई ऐसे इंटरनेशनल लॉ जो पता है जो टेक्नोलॉजी बिटकॉइन एआई से रिलेटेड आया है? किसी ने एक नाम सुना है जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, किसी ने सुना है? अच्छा किसी को ये पता है कौन सी कंट्री ऐसी है जो इस वक्त टेक्नोलॉजी या टेक्निकल लॉज के अंदर सबसे लाइक दे आर द फ्लैग बियरर्स ऑफ दिस होल डेवलपमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स? यूएस नहीं है, जापान, चाइना, नो ऑल अराउंड जो एक कंट्री है जो लीगल फ्रेमवर्क में सबसे फास्टेस्ट काम कर रही है और सबसे पुराने टाइम से काम करती आ रही है, जिसके प्रेसिडेंट केस लॉ है, दैट इज यूरोप, ठीक है। तो जो जीडीपीआर भी है उसको यूरोपियन जीडीपीआर बोला जाता है, और जो आपका डीपीडीपी एक्ट है ना,
गाइस, तो जो GDPR जो है, दैट इज द मेन एक्ट जिसके बेसिस पे सारी की सारी प्रिवेसी एक्ट्स बन रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। यूरोप का ही एक AI एक्ट है, एंड देन यूएस का एक एक्ट है जो कि AI के लिए बना है, स्पेशली एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट। व्हाट इट, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा तो आप लोगों को स्क्रीन पे देख लिया है, तो हो सकता है कि वोंट बी एबल टू रिलेट। कोई बता सकता है कि कितना फाइन होगा अगर इन एक्ट्स के अंदर, मतलब दीज आर न्यू एक्ट्स, ठीक है, DPDP एक्ट के अंदर भी वो फाइन मेंशन्ड है कि अगर कोई कंपनी, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, मैं कह रहा हूं मेरी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, AI कंपनी है, या मेटा जैसी कोई कंपनी आपको कुछ उसका AI कुछ आपको हार्म कर दे किसी तरीके का, मे बी इमोशनल हो, सेंटिमेंटल हो, मे बी आप उसके थ्रू फिजिकल हार्म कर लो, तो सब लोगों ने ब्लू व्हेल गेम सुना होगा। देखो तो कि ब्लू व्हेल जो बच्चों के लिए था, डार्क वेब पे मिलता था, बच्चे डाउनलोड करते थे और डेयर देता था बच्चों को, तो मल्टीपल किड्स लाइक बेसिकली जंप अप फ्रॉम देयर रूम, है ना। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी कंपनी पकड़ में आती है सरकार के, तो कितना फाइन एक्सपेक्ट करते हो? सरकार मैक्सिमम कितना फाइन लगा देगी? कोई एक अमाउंट 50 लाख? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। 10 करोड़? बहुत कम है। मैं बताता हूँ, जो यूरोपियन GDPR कहता है, वो कहता है कि ये फाइन 35 मिलियन पॉन्ड्स तक जा सकता है, 35 मिलियन पॉन्ड्स, ओके, और 7% ऑफ अ कंपनीज ग्लोबल टर्नओवर। मतलब अगर कंपनी और भी बड़ी है, एलन मस्क की कंपनी कुछ कर देती है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट केस एलन मस्क से आने वाला है, दुनिया के अंदर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट केस आने वाला है ना, दैट विल बी ऑफ एलन मस्क ओनली, बिकॉज़ द काइंड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट्स ही इज डूइंग, ही इज प्लेइंग विद टेक्नोलॉजी, उसको ही गवर्नमेंट पकड़ेगी। तो उसी ग्लोबल टर्नओवर का 7% उसको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और इंडियन DPDP एक्ट के अंदर अगर डोमिनोज से डेटा ब्रीच हुआ था, अगर वो आज की तारीख में डेटा ब्रीच होता था, तो इन्फोर्स, अभी तो खैर फुली इन्फोर्स नहीं हुआ है लॉ, ठीक है, तो उसको 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती थी, और 7% ऑफ देयर ग्लोबल टर्नओवर। दैट इज द अमाउंट वी आर लुकिंग एट। मतलब तुम्हारा डेटा इतना जरूरी है सरकार के लिए अच्छी तरीके से कि अगर आज हिंदुस्तानी सिटीजन का डेटा बाहर की कंपनी बेच रही है, अभी आप लोगों ने इंसिडेंट सुना होगा कि जो वॉर चल रही है इसके अंदर पेजर से वो फट गए कई जगहों पे, सुना है सब लोगों ने। अब एक बात बताओ, जो इतना छोटा सा पेजर जो कि इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है शायद, और वो ऐसे ब्लास्ट हो रहा है और जाने जा रही है लोगों की वॉरफेयर के अंदर, तो कितना क्रिटिकल है सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा कि हम लोग जो बिजली के मीटर आ रहे हैं ना, अभी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, हो सकता है ये ब्लास्ट हो जाए, चाइना का प्रोड्यूस होगा, नहीं मैन्युफैक्चर चाइना का होगा, यू नेवर नो। So now government is very paranoid about even the import and export of technology. Got it? इसके लिए ना अभी कोई एक्ट इंडिया के अंदर मैं नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिकली आया है, but there have been development. मैं कुछ एक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों ने मेंशन भी करे थे इंडिया में जो हैं। एक तो आईटी एक्ट अपना 2008, ओके। देन हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो कि अभी एक्सपेक्टेड है। I won't say it's enforced right now. We are not ready to get it enforced. Then अभी एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है 2018 से नीति आयोग की, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, अगर किसी को भी इसके बारे में रिसर्च करनी है, इफ यू वांट टू गो इनटू दिस फील्ड, ये एआई स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ब्लॉकचेन पॉलिसी के ऊपर भी काम हो रहा है इंडिया के अंदर, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हो ना, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लोग कहते हैं कि जियो कॉइन आने वाला है, सुना होगा आप लोगों ने अफवाह कि जियो अपना कॉइन निकालने वाला है ना। तो इस पॉलिसी के ऊपर बहुत क्लोजली काम हो रहा है, इसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा काम कर रही है इस वक्त, दैट इज नॉट पब्लिसाइज्ड राइट नाउ। चलो कुछ एआई के केस बताते हैं। कुछ कोई किसी ने एआई का कोई ऐसा केस सुना हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि जो एआई ने कुछ मिसहैपनिंग क्रिएट कर दी? अच्छा, किसी ने देखा है गूगल ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार निकाली थी, टेस्ला, देखा है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार है। क्या कभी देखने का लगता नहीं कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, तुमने आईपीसी जब पढ़ा होगा तो आपको ना समझाया गया होगा कि एक बस वाला जा रहा है, 10 लोग खड़े हैं, उसके ब्रेक फेल हो गए तो लॉ ऑफ थॉट्स के अंदर से पढ़ा होगा, ठीक है। फिर क्राइम की वो भी पढ़ी होगी, मैंस किया वगैरह सब कुछ समझाया होगा। किसी ने समझाया कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो कौन पकड़ा जाएगा? अगर सेल्फ ड्राइविंग कार कुछ किसी को मार दे रोड पे चल रहे आदमी को, तो किसकी गलती है? इज इट द एआई कंपनी, मैन्युफैक्चरर? ये कहाँ पे पड़ा है? मतलब ये
अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज से। अच्छा 2018 में उबर की गाड़ी थी, ठीक है, उसने एरिजोना में एक बंदे को उड़ा दिया चलते चलते। तो नाउ टेल मी क्या चार्ज उस पर लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यू? उबर को क्या मतलब क्या गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी थी उबर पे? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। उबर को कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे, ठीक है, उबर में कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं लगे थे उबर पर क्रिमिनल चार्जेस। एंड उबर ने सेटलमेंट कर ली थी फिर बाद में विदाउट मतलब व्हेन दे नेवर गॉट एनी क्रिमिनल चार्जेस अप्लाइड, मतलब उनको कोई एनफोर्सबिलिटी नहीं हुई किसी भी चार्जेस की, तो उन्होंने नॉर्मली फॉर द कर्टसी फॉर द ब्रांड रेपुटेशन उन्होंने जो भी विक्टिम था उसकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन दे दी थी, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक आर्म्स। अभी जब तुम लोग अभी हॉस्पिटल जाओगे ना तो चेक करना कि कुछ टॉप हॉस्पिटल्स में दिल्ली के अंदर भी देयर आर रोबोटिक आर्म्स राइट नाउ, ठीक है। आई सर्जरी करवाने जाओगे कभी, आई डॉक्टर पे कभी जाओगे तो उससे पूछना, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है जिसमें अब एआई आ गई है, ठीक है। सो आई डेवलप द कोड फॉर अ डॉक्टर जो कि मतलब आई सर्जन थे। तो ना कॉर्नियल अल्सर एक चीज होती है। कॉर्नियल अल्सर कैसे होता है कि जब आप किसी की आंख में देखोगे आपको ना रिफ्लेक्शन दिखती है लाइट की आंख के अंदर, वैसे रिफ्लेक्शन की तरह दिखता है और वो डिटेक्ट नहीं हो सकता नेकेड आई से। जब उसकी इमेज प्रोसेसिंग होगी, कभी भी कोई फोटो लेगा आईज की, तो वो कोड डिटेक्ट करके बताएगा कॉर्नियल अल्सर है या फिर ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। गॉट इट? और वो कोड हम लोग पास करवाने में हमें 4 साल लगे। दिस वाज बैक इन 2016 मैंने कोडेड दिस कोड और ये 2020 में जाकर के पास हुआ था, ठीक है। सो पॉइंट इज कि अगर ये कोड गलत बता दे आज किसी के नॉर्मल लाइट की रिफ्लेक्शन हो और उसको ये बता दे कि आपको कॉर्नियल अल्सर है और वो आपकी गलत मेडिसिन ले ले, so just try to understand the impact of wrongful detection of AI also, ठीक है, wrongful outcome। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सीसीटीवीज आजकल सब जगह लगे हुए हैं, आप लोगों कॉलेज में भी लगा हुआ है, फेशियल रिकॉग्निशन में सबको पता है, ऑफिसेज में होता है आजकल, ठीक है। एक कंपनी थी क्लियर व्यू एआई करके, ओके। उसने क्या करा, उसने बेसिकली मल्टीपल इमेजेस को प्रोसेस करा। तो आप लोगों को पता होगा कि आप चैट जीपीटी को फ्री में यूज करते हो ना, वो कहता है कि मैं जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसको प्रोसेस करूंगा अपने एआई को बेटर करने के लिए। वो आपसे कुछ बदले में लेगा ना, कोई इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं थी, सर्वर्स लिए हैं उसने मल्टीपल $1 बिलियन के और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो वो आपके डेटा को लेता है, उससे अपनी एआई को ट्रेन करता है, इंप्रूव करता है, फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस कंपनी ने भी फेशियल रिकॉग्निशन के सैंपल्स जो अपने सीसीटीवी वाली जो भी जहां भी सॉफ्टवेयर यूज होता था प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसने दे दिए पैसे। तो मान लो मैंने बोला ठीक है मैं भी डील कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम उसका ही था, व्हाट्सएप उसका था, फिर स्नैपचैट वाला बोला मैं भी डील कर लेता हूँ। उसने वो डेटा को जब खरीदा तो कुछ कस्टमर्स के साथ ऐसा हुआ कि जब वो किसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे गए, अब आप सोचो कि आप कहीं से निकल रहे हो और आपके निकलते टाइम एक अलार्म बज रहा है, एक कैमरा लगा हुआ है, आप निकल रहे हो, अलार्म बज रहा है, आपने सोचा रैंडमली हो जाएगा बट आपने एक बार रुक के देखा, वापस गए, फिर अलार्म बजा, आपको देख लिया, तो वो आपको डिटेक्ट कर पा रहा है। आपको जब क्वेश्चन उठा कि कौन सी कंपनी का सीसीटीवी कैमरा है मेरे को देखकर अलार्म क्यों बजा रहा है, तो जब रिसर्च चालू हुई तो पता लगा उसने इस तरीके से डेटा परचेज करा था व्हिच वाज रॉन्गफुल, ठीक है। आपका जो चेहरा है आपकी तारीख में दैट इज योर पीआईए। पीआईए का कंसेप्ट पता है सब लोगों को? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी, आपका नाम, पता, आपके पिता का नाम, आपका घर का एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी शक्ल। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाला जब चला गया था उसके बाद उसके गाने निकले कितने सारे, डू यू नो दैट इज एआई जनरेटेड कितने सारे गाने। अब क्या सिद्धू मूसेवाले की फैमिली कॉपीराइट के अंदर उसको कुछ ऐसा कुछ कर सकती है, क्लेम कर सकती है क्या कि एआई जो है मेरा गाना बनाना बंद कर दे सिद्धू मूसेवाले की आवाज से, क्योंकि उसमें वॉइस सैंपल तो बहुत सारे पड़े इंटरनेट पे। आई कैन आल्सो क्रिएट अ कोड जो सिद्धू मूसेवाले की सेम आवाज निकाल दे। So you know, try to understand the gravity of this is really high, and there are मतलब सिनेमैटिक स्टार्स जो कि आ रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट का सबसे पहला होता अनिल कपूर की वॉइस को, अनिल कपूर की फेस को उसने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे उसको प्रोसेस नहीं करेगा विदाउट माय परमिशन। समझ में आ रहा है? सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। मैं आईपीआर के भी केस लॉ पे आऊंगा बहुत जल्दी, जो बड़ा फेमस केस लॉ है, जो भी आईपीआर के अंदर इंटरेस्टेड है, पीपल हु वांट टू गो इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैसे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लियर व्यू एआई कंपनी के ऊपर फाइन लगा $21 मिलियन का, ठीक है।
इसने $21 मिलियन पे करे सिर्फ ये इमेज प्रोसेस करने के चक्कर में। अब एक ना चीज है जिसको बोलते हैं बायस। एआई ना बायस भी हो सकती है। अगर आप लोगों को पता होगा गूगल का एक एआई आया था बार्ड, सुना है सब लोगों ने? बार्ड आया था, फिर बार्ड बंद कर दिया गया था। क्या रीजन था उसका? एनीवन नोस? किस चीज के थ्रू वर्ड बायस था वो? मतलब लॉ में बायसेस तो पढ़े होंगे ना, ऐसा कहते हैं ना, हमारा प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है कि मतलब हम लोग किसी का भेदभाव नहीं करेंगे। आज अगर किसी को आप बॉडी शेमिंग कर देते हो या कुछ जेंडर पे रेस पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो सजा दिलवा सकते हो ना बोला। अगर एआई ऐसा कर दे तो, अगर एआई ऐसा कर दे तो उसको भी सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो उसका अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जो सोचना आप लोग, जिसने कोड लिखा है क्या उसकी गलती है? जिसने उस कोड को बेचना शुरू करा है क्या उसकी गलती है? ठीक है, और जिसने उस कोड को यूज करा है क्या उसकी गलती है? क्योंकि जब आप एआई मॉडल यूज करते हो देयर इज अ वार्निंग कि दिस इज एन एआई जनरेटेड थिंग, दिस मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, है ना? एआई आपको वार्निंग दे देता है, फिर उसे डिस्क्लेमर देके अपने आप को छुड़ा लेता है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि कोडर को पकड़ेगी कोड, मैन्युफैक्चरर को पकड़ेगी, या फिर जो यूजर है उसको पकड़ेगी कि तेरी गलती है। ठीक है, तो एक कंपनी थी कंपास करके, ठीक है, जी कंपास सब लोगों ने सुना है, ऐसे कंपास करके कंपनी जी बता दो उसको। उस कंपनी का केस है बड़ा इंपॉर्टेंट कि उसने एक एआई रिस्क असेसमेंट टूल बनाया, ठीक है, जो कि क्रिमिनल्स को कितनी सेंटेंस होनी चाहिए, उनसे कुछ कन्वर्सेशन करता था, बात करता था और बताता था कि क्रिमिनल को कितनी सेंटेंसिंग होनी चाहिए, मतलब कितनी जेल इसको मिलेगी, जज की तरफ से, मतलब अपनी तरफ से एनालिसिस करके बताता था। तो जजेस ने बोला कि यार जब ये पर्टिकुलर टाइप के लोगों से, मतलब फॉर एग्जांपल अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, तो उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी स्टेट के रहने वाले हो, तो क्योंकि वो एआई मॉडल है वो रिजिड है, उसने देखा कि ये वाली स्टेट जो है लोअर इनकम ग्रुप की स्टेट है, या ये आदमी जो है ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसने उसको सेंटेंस बढ़ा दिया। ठीक है, उसने देखा अच्छा ये रिच आदमी है, थोड़ा मतलब बोल रहा है नॉर्मल ब्लैक नहीं है, तो उसके इसने सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया। तो दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ एआई बायस। गॉट इट? क्यों डिपेंड करेगी प्रोग्रामिंग पे? सी एआई के डेटा के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जो एआई डेटा से सीखता है। अब एक बच्चा है तो वो पैदा होगा तो शुरू में वो बदमाशी कर सकता है, बड़ा होगा तो सीखेगा ना। ये तो कह रहा है कि मैं सीख रहा हूं अपने डेटा से रेगुलरली, वो कह रहा है कि ठीक है आपको लग रहा है कि मेरा डिसीजन बायस्ड है, आप उसको आइटरेट कर दो, मैं कल को नहीं करूंगा दोबारा डेली। बट जो लॉस हो गया, जो हार्म हो गया उसकी वजह से, वो कौन बियर करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो उसकी प्रोग्रामिंग की गलती नहीं है, उसके डेटाबेस की गलती हो सकती है। वो कह देगा मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में वी डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, हमें मिलता ही नहीं है डेटा, सरकार अपना डेटा शेयर नहीं करती है एनसीआरबी का, एससीआरबी का, तो वी हैव टू टैकल इट। गॉट इट? एक ना केस था बड़ा फेमस, अगर इसको मेंशन करना है अपने फोन पे सर्च करना है, कर लो डाबुस, DABUS। ये IPR में जो भी लोग जाना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, एआई का बहुत क्लासिक केस एग्जांपल है। DABUS, डाबुस। सो डाबुस एक एआई सिस्टम था, ठीक है। आज की तारीख में आप लोगों ने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, इवन अपने मैं कोर्ट्स के अंदर भी देखता हूँ, काफी सारे लॉयर्स अपनी पूरी लिटिगेशन के अंदर यूज कर रहे हैं एआई बहुत अच्छे से। एंड देयर आर एआई राइट नाउ जो कि कोर्ट्स के अंदर लॉयर्स को सब्सक्रिप्शन भी दी जा रही है। मनु पात्रा का तुमने सुना होगा ना, यू गाइस नो मनु पात्रा इज वर्किंग ऑन देयर ओन एआई। पता है किसी को मनु पात्रा की एआई देखी है किसी ने? सुनिए। अच्छा, रिसर्च के लिए कौन सी एआई यूज करते हो तुम लोग? चैट जीपीटी। अब लेट्स से कि तुम कुछ रिसर्च करके लाते हो, ठीक है, और मेरे से फीस मांगते हो, और मैं एज अ क्लाइंट तुम्हें कह देता हूं कि यार ये तो एआई ने बनाई है, मैं तुमको फीस दूं। अदर देन द योर रिप्रेजेंटेशन फीस, जब तुम कोर्ट में जाओगे उसके सिवाय में तुम्हारे को ड्राफ्टिंग की फीस क्यों दूं? तो विल यू एक्सेप्ट? क्यों? जो टेक्निकल वर्ड डाल के जो स्ट्रेच पे काम कर रही है वो तो हमने दर्ज किया है ना, ठीक है, तुमने फ्रेजेस दे दिए उसको, बट जो जनरेशन करी है, जो मेन काम करा है वो एआई ने करा है। उसका एक क्लासिक एग्जांपल है डाबुस केस,
एक कंपनी थी हेलर करके, THALER, हेलर। वो पेटेंट्स वगैरह फाइल करती रहती थी, रिसर्च कंपनी थी, हम लोग की तरह R&D कंपनी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे। उन्होंने एक AI बनाया डाबोस। उन्होंने उसको बोला कि ना हमारे लिए तू ये 4-5 चीजों पे ये चीजें और डेवलप करते हैं। उस AI ने वो चीजें डेवलप कर दी, उनके लिए कोड थे, डिजाइन्स थे, ठीक है। और उन्होंने जाकर के पेटेंट ऑफिस में पेटेंट फाइल कर दिया। उनका एक हेड इंजीनियर था जिसने उस कंपनी को छोड़ा, उसने कोर्ट में उस पेटेंट एप्लीकेशन को क्वेश्चन रेज कर दिया। उसने बोला कि जो मैंने कोड लिखा है उसके थ्रू ये सारी चीजें जनरेट हुई है, तो उसका पेटेंट का राइट मुझे मिलना चाहिए। उसका क्वेश्चन ये था कोर्ट से। कोर्ट ने एनालाइज करा, कोर्ट कहता है कि ये ना तो राइट इस इंजीनियर को मिलेगा इस पेटेंट का, ना ये राइट कंपनी को मिलेगा स्केलर को, ये राइट मिलेगा AI को, ठीक है। जो उसके पेटेंट्स हैं वो डाबोस के नाम पे फाइल करे जाएंगे, डाबोस उसका लीगल ओनर होगा। नाउ इट्स अप टू डाबोस की डाबोस उसको ट्रांसफर करना चाहता है। मतलब उसने AI को अथॉरिटी दे दी कि पेटेंट इसके नाम पे होंगे, ये ट्रांसफर करेगा अगर अपने राइट्स, तो अगर वो इंजीनियर को करता है ठीक है, कंपनी को करता है ठीक है। बाय डिफॉल्ट बिकॉज़ कंपनी वाज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो कंपनी के पास ही बेस्ट हुए, बट उसका फर्स्ट पेटेंट फाइलिंग डाबोस के नाम से ही है, नॉट विद द मेन पेरेंट कंपनीज नेम। गॉट इट? So these are the kinds of development जो कि अभी मार्केट में हो रहे हैं। चलो एक बात मैं बताता हूँ, हम लोगों ने ना हमारा एक एनकाउंटर का केस चल रहा था, ठीक है, नोएडा कह रहा हूँ। तो हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो तुम्हें पता होगा पुलिस कॉल टैप कर लेती है, तो पता होगा ना सबको, पुलिस के पास पावर होती है कॉल टैपिंग करने के लिए। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी हमने, 2 क्रिमिनल्स आपस में बात कर रहे थे, किसी का मर्डर होना था, प्लान कर रहे थे उन्होंने किसी का मर्डर, ठीक है। तो गैंग वॉर हो गई आपस में, जैसे आजकल चल रहा है ना, नॉर्मल दुश्मनी को फोन आ जाते हैं, सब लोग सुन रहे हो ना, अभी बाबा सिद्दीकी को मारा है उसने। तो हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम, स्पेशल सेल्स के पास, STF के पास, ऐसे और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो गैंग AGS भी होता है, देयर इज एन एंटी गैंग स्क्वाड आल्सो, उनके पास ना इंफॉर्मेशन होती है इन चीजों की, वो रेगुलरली इनके पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं गैंगस्टर्स को। उनको पहले अगर कॉल पर कुछ भी लीड मिलती है वो उसके ऊपर काम करते हैं, दिस इज देयर जॉब, डे जॉब। हम लोगों ने जो क्रिमिनल्स की बात सुनी वो किसी का मर्डर प्लान कर रहे थे, और क्या आती थी कॉल रिकॉर्डिंग, या व्हाट्सएप पे आता, बस इतनी सी बात करते थे नॉर्मल कॉल पे। जैसे मैंने आपके फोन को अपने नॉर्मल सिम से फोन मिलाई, आपने भी अपने नॉर्मल सिम से फोन मिलाई, ओनली वर्ड्स वर कि यार व्हाट्सएप पे आ जा। अब ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन कि व्हाट्सएप पे आ जा? प्रोटेक्टेड है, सर्विलेंस नहीं हो सकती, ऐसा सुना होगा ना तुम लोगों ने। तो उसने पूरा मर्डर प्लान ही व्हाट्सएप पे करा, ठीक है। बट आई टेल यू व्हाट्सएप कैन बी इंटरसेप्टेड, ठीक है। दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट व्हाट्सएप इज इंटरसेप्टेड, ठीक है ना। चलते फिरते कोई नहीं करने वाला इंटरसेप्ट, बट व्हाट्सएप इज इंटरसेप्टेड, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि उसने बोला व्हाट्सएप पे आ जा, व्हाट्सएप पे आ जा, तो पूरा गैंग जो था वो व्हाट्सएप पे ऑपरेट कर रहा था। अब अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो तो एक चीज समझ लेना कि साइबर का एंगल, जब उसका कभी भी फोन पकड़ा जाएगा, या इवन आपको CRPC 91 के अंदर हम लोग नोटिस भेजते थे, जब आप नोटिस भेजोगे व्हाट्सएप से डेटा सर्च करने के लिए, तो आपको साइबर के नॉलेज में होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये नॉलेज बड़ी क्रिटिकल है। प्रोसीजर्स वगैरह सब समझा रहे हैं, कोर्ट के अंदर कोई ये नहीं बताने वाला कि क्या चीज कैसे मांगनी है और क्यों मांगनी है। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो अब हम लोग ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस का जाते हैं और लीगल इश्यूज का जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा है ना सब लोगों ने, ठीक है। तुम्हें पता है कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन जो है दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, ये सबको पता है किसी को, या किसी ने सुना है कभी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेज के कुछ ऑफर करता हूं और तुम लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, वुड इट बी कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं अपनी एक एप्लीकेशन बनाता हूं, उस पे मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए 5 चीजें करनी है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, पैसे भी मुझे देते हो, और मेरे को आपको रिटर्न में कोई सर्विस या कुछ भी आउटकम दिखाना है, तो इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट? कोर्ट में क्लेम कर सकते हो ना उसके बीच, ठीक है। ब्लॉकचेन जो है ना वो क्रिप्टो से अलग है, ये चीज अपने दिमाग में सेट करना, समझना कि क्रिप्टो इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बट ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। अच्छा ईवीएम हैक होते हैं, किसको लगता है ईवीएम हैक होते हैं? कितने लोगों को लगता है ईवीएम हैक होते हैं? कांग्रेसी
I don't have any personal views on this. But ये अच्छा किया है. I will tell you. Guys, एक सेकंड. Understand? सिर्फ इतना अच्छा हुआ है कि even for the international peace treaties, RPM is being called. I don't know कि अब ये हमारी contribution है या BJP contribution है, but this is what is going on right now. अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी रही है यार वो तो देखो जब तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं पढ़ने में जब एम्प्लॉय तो रहोगे ना. जॉब का वादा कॉलेज भी नहीं करता. इस कॉलेज से भी नहीं मांग सकते तुम जॉब. तो गाइस सुनो. दो तरीके की ब्लॉकचेन होती है, ठीक है. एक होती है पब्लिक ब्लॉकचेन और एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन. थोड़ा टेक्निकल है, मैं उसको जल्दी ओवरव्यू में समझाता हूँ. पब्लिक ब्लॉकचेन पता क्या होती है? आज ईवीएम के जो वोटिंग के रिजल्ट है, क्या वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है? पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना. अच्छा, अगर कौन सी इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से पब्लिकली डिस्क्लोज करी जाती है, होती है? एफआईआर क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन है? एफआईआर पब्लिक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? किसने बताया पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि एफआईआर एक्सेसिबल है थ्रू पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट? मतलब एज अ सिटीजन यू कैन एक्सेस एफआईआर. किसको पता है? किसने एफआईआर सर्च करी आता है? कैसे करते हो सर? क्या एफआईआर एक पब्लिक रिकॉर्ड है? पर अगर मेरे को मान लो एज अ लॉयर तुम लोगों के पास कोई केस है, मैं कोई थर्ड पार्टी हूँ, मेरे को तुम्हारे क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसको कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या मैं पब्लिकली निकाल सकता हूँ इंटरनेट पे जाकर के? निकाल सकते हो, ठीक है. एफआईआर की इंफॉर्मेशन अगर किसी आदमी पे एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो तुम आज की तारीख में ऑनलाइन जाकर के निकाल सकते हो. पहले एक प्रोसेस यू हैव टू बेसिकली गेट इन टच विद द आईओ ऑर्डर एग्जैक्ट विंग जिसने उसको ऊपर करियर थाना जिसने भी यहाँ पे भी एफआईआर नहीं है. एफआईआर नंबर से निकाल सकते हो, एक्यूज के नाम से निकाल सकते हो, ठीक है. ईयर ऑफ एफआईआर से निकाल सकते हो. नाउ दिस इज अ पब्लिक रिकॉर्ड. पहले पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो क्या ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं लोग? जो तुम्हारा मीटर तुमने देखा होगा पहले ना, पानी का मीटर लगा होता था घर के अंदर, याद है? क्या वो पब्लिक रिकॉर्ड है या वो प्राइवेट रिकॉर्ड है? किसी से घर में आईजे की गैस आती है, मीटर लगा होता है ना गैस का भी, क्या वो पब्लिक रिकॉर्ड है या प्राइवेट रिकॉर्ड है? अच्छा, बिजली का मीटर जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड है प्राइवेट रिकॉर्ड है? ठीक है. पानी का मीटर, बिजली का मीटर, ठीक है, और आपका गैस का मीटर, ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है, दीज आर पब्लिक रिकॉर्ड. ओके. एंड ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की. ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करे जा सकते हैं, जिनको पब्लिसाइज करा जा सकता है. अच्छा, जो वोट देते हो तुम लोग ईवीएम का, क्या ईवीएम का डेटा पब्लिक रिकॉर्ड है या प्राइवेट रिकॉर्ड है? पब्लिक है या प्राइवेट है? क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ. हेलो, व्हाट इज योर नेम? Samad, do you think if you think like EVMs are being hacked or like if something is a conspiracy is going on, do you have a route where you can go to the government and can ask कि मेरे को EVM के exact vote counts दिखा दो? How? किससे? यार सुनाई दे रहा, खड़े होकर बोलो. हाँ. कांड भी है. मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर ईवीएम मुझे लग रहा है हैक है, तो आप मेरे पास क्या ऐसा टूल या इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि मैं जाके पूछ पाऊँ कि मेरे को ईवीएम को वोट करा दो? अब आरटीआई कर सकते हो. मैं सेकेंडली ईवीएम हैक नहीं हो सकते. ये स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन ने ये भूल है यार. ये तो भूल है. ये चीज उन्होंने कही है सर. किसने कही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. वो कहेंगे, वो कहेंगे. वो तो पॉलिटिक्स है. एंड द लॉयर नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स. M1 मॉडल व्हिच कांट बी हैक्ड. वो किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते. वो एक स्टैंडर्ड अपनी मशीन होती है जो आप हैक नहीं कर सकते. आप बेसिकली आप उसमें जो मैं बात करता हूँ गाइस, सुनो. एज अ लॉयर लिटिगेशन में या नेगोशिएशन में ना, देयर इज अ थिंग, कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स, अगर डाउट से लेकर बहुत बड़ी बात है वकील के लिए. समझ में आ रहा है? कल को अपने घर में रोटी पानी लेकर जाना है ना सबने. यहाँ पे 5 साल लगाओगे, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो घर पे पैसे लेकर जाने हैं ना.
तो कुछ क्वेश्चंस को क्वेश्चन ही रहने दो पब्लिक डोमेन में, तो बहुत बढ़िया है फॉर अ लॉयर। गॉट इट? तो ईवीएम्स माइट बी हैक्ड और माइट नॉट बी हैक्ड, आई डोंट नो, ठीक है। बट मैं तुझे बता रहा हूँ कि क्या ईवीएम पब्लिक ब्लॉकचेन बन सकती है, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड बन सकती है? जब कौन-कौन सब लोग वोट डाल चुके हैं, सबने वोट डाला है। जब वोट डालने जाते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो तुम्हें एक उसमें कार्डबोर्ड के अंदर वो मशीन रखी होती है, उस पर दबाना होता है ना बटन, वो कोई और ना देखे कि तुम किस पे दबा रहे हो, उससे बायस ना हो जाए वो, या तुम इन्फ्लुएंस ना कर पाओ। बट जो ईवीएम का रिकॉर्ड होता है दैट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड, एंड देयर हैव बीन राइट नाउ आल्सो नीति आयोग उस चीज पे काम कर रहा है कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा एक इलाके में मल्टीपल ईवीएम होती है, तो तुम्हारे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तुमने देखा पर्चियां भी आती है बगैर जब वोट डालने जाते हो, वो टेबल लगा के लोग बैठे होते हैं, फिर तुम उनसे पर्ची लेकर अपना बूथ नंबर पूछते हो, तो हर बूथ के अकॉर्डिंग ईवीएम्स लगी होती है। तो एक बूथ को एक ब्लॉक मान लो, ठीक है, ब्लॉकचेन है ना, एक बूथ को एक ब्लॉक मान लो, फिर दूसरे बूथ को दूसरा ब्लॉक मान लो, उसके रिकॉर्ड पब्लिकली मेंटेन करे जा सकते हैं। एंड देयर इज अ सिस्टम इन यूएस जहां पे ब्लॉकचेन को यूज करा जा रहा है वोटिंग के लिए। गॉट इट? सो पब्लिक ब्लॉकचेन इन फ्यूचर ईवीएम में भी आएगी, तुम्हारे बिजली के मीटर में भी आएगी, पानी के मीटर में भी आएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से समझना बहुत जरूरी है। फिर देयर आर प्राइवेट ब्लॉकचेन, जिसका तुम लोग के लिए कोई लेना देना नहीं है एज अ लॉयर, क्योंकि वो कंपनी अपने लिए बना रही है। दैट इज लाइक गिबरिश, मैंने अपनी कोडिंग लैंग्वेज बना ली, अपनी एन्क्रिप्शन बना ली, मैं आपस में बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन और डू एनी गुड इन द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क, किसी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए लीगल रेगुलेशन या ग्लोबल फ्रेमवर्क है? कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज वगैरह? अच्छा, ट्रेडिंग कौन करता है नॉर्मल स्टॉक्स में? आईडिया नॉर्मल कोई ट्रेडिंग नहीं करता है यहाँ पे, मतलब कभी पैसे इन्वेस्ट कर, कोई आईपीओ खरीदा, पेटीएम वगैरह किसी ने खरीदा होगा, 4-5 लोगों ने खरीदा है। अच्छा, किसने स्कैम वाली मूवी देखी है, अर्जुन मेहता वाली, ठीक है, पता है ना ट्रेडिंग कैसे होती है, समझ में आता है ना। मुझे बताओ कि आज मुझे कोई कॉइन रजिस्टर कराना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, तो मैं कैसे कराऊं? आज मैं एक स्टार्टअप आइडिया देता हूं, मैं अपने इन्वेस्टर से बोल दूं ठीक है, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जो इन्वेस्टमेंट दे दो 5 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए की, तो तुम्हारी डिपार्टमेंट है, और उसके बाद तुम अपना खुद का कॉइन बना दोगे, GIBS का कॉइन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या उसको मैं रजिस्टर करा सकता हूँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के अंदर एज अ कमोडिटी? अच्छा, किसी को पता है कि जो भी कमोडिटी होती है उसको रजिस्टर कराया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के अंदर? ये तो पता होगा ना, देयर इज एन NSE, देन देयर इज अ BSE, ऐसा पता है ना, सुना है ना? पार्डन, पता है ना? तो बिटकॉइन में ऐसा कुछ है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्या यूएस में ऐसा कुछ है? यूएस में नहीं है। तो यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल था, उसने एक टेस्ट निकाला इस चीज के लिए, ठीक है, जो कि 1991 से यूज होता हुआ आ रहा है। इसको तुम लोग लिख लोगे द हॉवी टेस्ट, द हॉवी टेस्ट, HOWEY, ओके। तो ये अगर हॉवी टेस्ट को कोई भी क्रिप्टो या कोई भी कॉइन पास करता है, इट कैन बी मेड अ लीगल कमोडिटी, तुम उसको स्टॉक एक्सचेंज पे वोट कर सकते हो, एंड पीपल कैन लीगली लाइक बेसिकली ट्रेड इनटू इट, ठीक है। अब ये हॉवी टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए कि सामने वाली चीज कोई कमोडिटी है, उसमें ट्रेडिंग करी जा सकती है। पहला तो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए किसी का, ठीक है, जो क्रिएटर है उसका खुद का नहीं, दूसरों का भी। एक कॉमन एंटरप्राइज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक सिंगल कंपनी में, सिंगल ब्रांड के अंदर पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए। फिर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने भी पैसा डाला है, उनका विजन होना चाहिए, वो होप कर रहे हो कि हमें प्रॉफिट हो, इसलिए उन्होंने पैसा डाला है। इन्वेस्टमेंट इसकी तुम रिस्क लेते हो कि आप पैसा डूब जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर होपिंग फॉर प्रॉफिट, गॉट इट। प्रॉफिट जो है वो दूसरे के काम करने से आना चाहिए। तो ये तो मैं बता देता हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी चीज जो कमोडिटी बनाती है। तुमने देखा होगा जो कंपनी आईपीओ बन रही है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है प्राइवेट लिमिटेड से, कॉर्पोरेट लॉ में कितने लोग हैं यहाँ पे? BBLLB में कितने लोग हैं? BBLLB, ओके। अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर कि तुम लोग देखोगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक जा रही है, आईपीओ जा रहे हैं, है ना। ये जो पब्लिक जा रही है कंपनीज, ये कब जाती है? जब एक सर्टेन टर्नओवर मैच कर लेती है, कुछ क्राइटेरिया मैच कर लेती है,
तब यू कैन आस्क द नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड कि हमें पब्लिक जाना है, हमें पब्लिकली लिस्ट होना है कंपनी को, क्योंकि हमारे काम करने से हम और लोगों को प्रॉफिट बांटना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द होल कंसेप्ट। तो ये हॉबी टेस्ट बोलते हैं इसको यूएस के अंदर। अगर ये कोई पास करेगा वो क्रिप्टो करेंसी भी बना सकता है। अच्छा, इंडिया में क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का अकॉर्डिंग टू? अगर आज मैं क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता हूं तो एम आई क्रिमिनल और नॉट? इलीगल है, कोई क्लियर स्टेटस है? इलीगल कहां पे लिखा हुआ है? गवर्नमेंट तो ये कहती है कि तुम क्रिप्टो पे गेन कर रहे हो, कैपिटल गेन कर रहे हो, 30% टैक्स होगी। कितना? 12.5। मतलब कि नई पॉलिसी के बाद फर्क आया ना। बट अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेड करके डायरेक्ट प्रॉफिट कमा रहा हूं तो कितना मेरे को टैक्स देना पड़ता है? क्रिप्टो में आप 30% प्रॉफिट दो गवर्नमेंट को, साथ में 30। लोगों को जानना है कि फिर वो इलीगल कैसे होगा? गवर्नमेंट मुझे टैक्स नहीं दी मेरे से किसी चीज पे, चलन गांजे पे टैक्स नहीं दी गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं होता कि तुम जाके खरीद लो टैक्स दो। हां, कितने लोग खरीदते हैं यहाँ पे क्रिप्टो? हामी आपकी हो गई नेचुरली बाय डिफॉल्ट। तो क्या हम देखते हो गवर्नमेंट कुछ केस कर सकती है? हमारे पास ओवर कर। अच्छा, ये बात बताओ, ये बताइए कुछ क्वांटिफिकेशन ऑफ थिंग्स होती है। जैसे अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से तुम्हारे पास कोई चीज मिले तो इट कैन बी कॉल्ड कि तुम कुछ उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसे क्रिप्टो में भी कहती है। गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इंडियन कंपनी हो और तुम क्रिप्टो का कुछ यूज करके पैसा बना रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो तुम इलीगल बिजनेस हो। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम इंडियन बिजनेस हो और तुम उससे क्रिप्टो से कुछ पैसा कमा रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके, कॉइन बना के, करेंसी बना के, इट्स इलीगल। बट इफ यू आर ट्रेडिंग, तुम इंटरनेशनल बोर्ड्स पे जाकर के ट्रेड कर रहे हो, यूएस के अंदर इस वक्त 16 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है लीगलाइज हैं, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, मतलब तुम्हारा केस नहीं होगा। बट तुम्हें उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर नहीं दोगे तो केस हो सकता है। दैट इज अनदर स्टोरी। और तो इसके ऊपर ना 2018 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, काफी इंपॉर्टेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहस चली थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन को ओवरटर्न कर दिया था। 2018 से 2020 तक बैन, मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्रिप्टो के अंदर। पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया था। और तो इसके अंदर एक बस लीगल अनसर्टेनिटी वाली बात थी कि अभी भी क्रिप्टो की कोई लीगल सर्टेनिटी नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो मैं अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था तुम लोगों को कि देयर आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तुम क्रिप्टो खरीदते बेचते हो ना, सब कुछ डिजिटली करते हो। तो जब तुम नोट देते हो अपना, तो तुमने नोट पे देखा एक कुछ प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस नोट होता है नोट के ऊपर। करेंसी नोट जो होता है किसी भी कंट्री का, उसमें गवर्नर से साइन होते हैं। क्रिप्टो में ऐसा कौन करता है? क्रिप्टो में हु इज साइनिंग ऑल दीस थिंग्स? ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कौन करता है? आज तुमने मुझे एक बिटकॉइन दिया, ठीक है, उसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए। हु इज वैलिडेटिंग दिस ट्रांजैक्शन कि मेरे को बिटकॉइन जो है वो मिल गया है? हाउ यू कंफर्म मेरे को बिटकॉइन मिल गया है? बताओ। तो ना बिटकॉइन एक कम्युनिटी बेस्ड चीज है। क्रिप्टो जिसको भी बोल लो, क्रिप्टो करेंसी का कम्युनिटी बेस्ड थिंग। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं कुछ भी एक्सचेंज कर रहा हूँ, वो सब लोग जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे कि हाँ एक्सचेंज हुआ है, हाँ एक्सचेंज हुआ है, तब तक वो एक्सचेंज वैलिड नहीं माना जाता। दिस हैपेंस, ओके। इनको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर कोडिंग हुई है, ठीक है, और कुछ कुछ कंडीशंस डली हुई है। वो कंडीशंस मीट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट होकर ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। क्या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का लीगल है? डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का लीगल है? व्हाट्सएप पे तुमने बोला था ना कि मैं कुछ प्रॉमिस करता हूँ, कुछ सर्विस देता हूँ, उसके अगेंस्ट तो लीगल हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपना पर्सनल लिख लेना। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी नेक्स्ट बिग थिंग, और राइट नाउ दिस इज हैपनिंग। यू नो, जो वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट की डील हुई है, देयर आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्वड।
चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिप्टो है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्यों वैलिड नहीं है, फटाफट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नल डेटा है कुछ, ठीक है, रैंडम लोग बैठे हैं यहाँ पे, उन लोगों को कौन सरकार अलाउ कर लेकिन गवर्नमेंट ने साइन कर दो, तो गवर्नमेंट मना कर देती है, गवर्नमेंट कहती नहीं ये चीज़ वैलिड नहीं है। फिर कोड है, तो कोड के अंदर भी लिमिटेशन है, कुछ कल को कोई हैकर आकर कोड को हैक कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले तो वो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी टू अनसर्टेनिटी। तो अभी के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल जगहों पर अलाउड नहीं है, सिर्फ एक जगह है एरिज़ोना यूएस में, वहाँ पे अलाउड है, ठीक है, लीगली। नाउ एज अ लॉयर यू कैन स्टार्ट एज अ डीपीओ। अगर आज आपका पैकेज 6 लाख रुपए का लगता है तो डीपीओ तुम्हारा पैकेज सीधा 12-14 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, एंड दैट्स मेरा स्टार्टअप, मतलब मैं बड़ी कौन सी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। देन यू कैन इन आईपीआर यू कैन बेसिकली थिंक ऑफ ऑल दिस पेटेंट ऑप्शंस जो मैंने बताए थे, ठीक है। एआई को लेकर के अभी इंडिया में बहुत रैंडम चीजें हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ एआई और ब्लॉकचेन लॉयर, बट यू कैन कॉल योरसेल्फ अ साइबर लॉयर। व्हाट इट है? साइबर लॉ के लिए क्या क्या चीजें करनी है, कुछ सर्टिफिकेशन है, आई विल प्रश्न मैम शेयर द डिटेल्स विद यू, कौन-कौन सी सर्टिफिकेशन अच्छी हैं जो आप लोग कर सकते हो जिससे कि आपको करियर में एनहांसमेंट हो जाए। ओके, अब किसी को कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो यू कैन आस्क एनीवन। Our guest for an insightful session on legal framework. Sir's expertise and perspective have illuminated the complexities and opportunities that lie at the intersection of technology and law. We appreciate the time and effort you dedicated to sharing your knowledge with us today. We look forward to having a long association with you for more enriching sessions. Thank you so much, sir.